Bijendra Pratap, an artist with true soul, from Lucknow, Uttar Pradesh, India. He has natural love for colors since early age of life. He always liked to play with colors. He has done Master of Fine Arts from Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh. His art education gave him wide perspective to work in various medium of colors, patches and style. But he has special love for painting with watercolors. Whenever he gets a chance, he moves out to the surrounding countryside to paint the human life of poor people like sagas, slum children, etc. in watercolor. His painting has its own unique style which has been admired and appreciated by contemporary artists and art critics in India and abroad. He hails from a modest town of Merwa, Siwan, Bihar, brought up in the midst of pristine nature, witnessing the hardship of the farmers in the rural segment of the country, and he takes pride in this. His works are more specifically inspired by the marginalized, mystic, and poor people with the ordeals of day to day life writ large on their faces. Some of these agonized souls still manage to wear a smile that is inviting, loving, and asking questions, the answers to which seem to have no existence in this materialistic world. Nature, in all its bounty and beauteous form, fascinates him with also find expression in his paintings. He hopes his endeavor reaches hearts all through the humanity. There is a large list of the exhibition, camps and award which reflects his journey of art. He has participated in many virtual show and gallery show at national and international level. He also became the part of first ever 3D gallery view virtual art international exhibition organized by Graphico Art Design New Delhi. He has participated in Gallery 42 Fine Arts Maison, and in 2015 he participated in a group show in Mosa, Greenwich House Gallery of Fine Art, OU, USA, a group show by Art Blue in Shanghai, China, and so many. His upcoming exhibition is Solo Show in January 2022 in Mosha, Franklin, OU, USA. जुस्तजू ये नहीं कि खुदा है या नहीं, जुस्तजू तो ये है माँ की आपसे बढ़कर खुदा है या नहीं। जीवन तपती धूप है और माँ पीपल की छांव, जिसकी छांव में सदैव मन को शीत लगती है। बेटियों का पिता बनकर आदमी कुछ और ज्यादा आदमी बन जाता है, शायद इसलिए कि बेटियां पिता के हृदय में खूब मानवता भर देती हैं। बेटियों का सहारा कितना सादा होता है ना, कितने सुंदर नए नक्श, कितना सादा चितवन, चेहरे पर घनेरी छतनार मुस्कुराहट, मुस्कुराए तो चमकते हुए दांतों की एक पंक्ति की झलक सम्मोहन से भर दे। ऐसे दांतों पर भला किसी और को प्यार क्यों ना आए। काले घनेरे बाल कितने दिलनशी एहतियात से संजोए हुए। बेटियां शोक का आदमकद इश्तिहार होती हैं। उनका चित्त
किसी और ही दुनिया में खोया हुआ होता है, जो मासूमियत और भोलेपन के गुलिस्तां से सजा हुआ मुलायमियत के पश्मीने से बुना होता है। कृष्ण, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। यह एक लापरवाह भूल से की गई बात नहीं, अपितु गहरे अनुराग में दिल की गहराइयों से निकली हुई जज्बात है। तुम सिर्फ मेरे हो। यह उस अधिकार से कहा गया है जिस अधिकार से तुम पर मेरा स्वामित्व है, और यह स्वामित्व तुम्हें किसी और का होने का अधिकार नहीं देता। यह अधिकार चंद मिनटों का नहीं, उम्र भर का होता है। जो संपूर्ण जीवन की पूंजी लगाकर भी हासिल नहीं कर सकता, इतना अमोल होता है। इसे प्यार की और प्यार करने वाले की खुद मुख्तारी ही समझ लीजिए, कब्जा ही समझ लीजिए। जो किसी भी हाल में आपको किसी और का होने नहीं दे सकता। तुम सिर्फ मेरे हो। कितना स्वामित्वपूर्ण और अधिकार से लबालब भरा हुआ कथन है। अपना होने का संपूर्ण एहसास। बात भले झूठी हो, किंतु कितना सुंदर है। इस शब्द की कल्पना में कितना रस है। जैसे कहने वाले से एक नाता बन गया हो, जैसे कहने मात्र से दिल जुड़ गया हो, जैसे कुछ भी कहना इस संसार में हवा का एक बगला भर नहीं होता, कहने से उसका एक ठोस आकार बन जाता है, नियति बंध जाती है। राधा के कान में मिट्ठू के पिंजरे के जैसा एक नन्हा सा झुमका जो पूरे समय झूलता रहता है। जैसे नीम बेहोशी में कोई हिंडोला लहराता है, ठीक वैसे ही कृष्ण के मन में तुम सिर्फ मेरे हो यह कथन पूरे समय लहराता होगा। हे कृष्ण, मेरी चाहना वो नदी है जो समर्पण की लहरें और प्रणय का उत्कर्ष लिए मिलन की उत्कंठा में आत्मोत्सर्ग प्राप्त कर अपने नाभि में निर्बोध प्रेम का बीज फलित करती है। मुझे नहीं मालूम खूबसूरती की परिभाषा। जो तुम सा दिखता है कृष्ण, मुझे वो खूबसूरत लगता है। जंगल की सबसे सुंदर फूल से ओस की बूंदें जैसे टपकती हैं झील में, तुम्हारे चेहरे की परछाई वैसे ही टपकती हैं कृष्ण मुझ में प्रति क्षण। तुम्हारा बदन एक पियानो सा है और तुम्हारी उंगलियां उसकी कुंजी। जैसे इन कुंजियों को छूता हूं तो मेरे मन के सारे तार झंकृत हो जाते हैं और वायु में ध्वनि तरंगे एक मधुर संगीत के रूप में उत्पन्न होने लगती हैं। तुम शोक हो, दोषी जाओ और आटे में नमक जितनी नक चढ़ी भी है, फिर भी लहजा तुम्हारे होठों पर गुड़ की चाशनी जितना चिपका होता है। तुम वो स्त्री हो
जिसे मैंने भीतर पाया है और जिसे मैं बाहर शब्दों में कहता हूँ। समस्त कलाओं को जानने का रास्ता मुझे तुम्हारे एक स्पर्श से मिल जाता है। समस्त कलाओं का सार हो तुम। तुम्हारा प्यार सावन की हल्की फुल्की बौछारों में भीगने जैसा है, जिसमें आंखों में उतर आती हैं हरियाली और जीवन का एक खुशनुमा फूल सा लगने लगता है। मुझे इन फूलों से आज तलक रश्क होता है कि मैं आदमी क्यों हुआ, तुम्हारे आंगन में संजोए गमलों का पुष्प क्यों ना हुआ, जो हर रोज तुम्हें बड़े स्नेह से देखते हैं गुंज भरी चुप्पियों के साथ। नहीं मालूम कितने ही इरादे, मंसूबे और तमन्नाएं मन में बांधे हुए, मैं क्यों बना जुगनू की तरह चुपचाप चल जाने वाला प्रेमी। उधेड़ बूंद से भरी आत्मा लिए क्यों बना बिच्छों का स्थिर चित्र। मुझे होना है तुम्हारे आंगन का पुष्प, बनना है तुम्हें प्रमेल कि तुम मेरे रूपक पर फिदा होना, जैसे फिदा होती हो इन पुष्पों पर नित्य। पुष्प ठहरे उपवन के श्रृंगार, इनकी रूपात्मकता अथाह वर्ण कितने सुघड़, फूलों को क्यों तोड़ना भला। वैसे वही डालियों पर अपने स्वरूप में प्राकृत है, जैसे चांद फलक पर चांद को कोई तोड़ने की चेष्टा करता है क्या। तो इन फूलों को तोड़ने की चेष्टा क्यों, ये म्लान ना हो जाएंगे। फूलों को तोड़कर किसी का मन पुष्पित कैसे हो सकता है भला। इजाजत नहीं, इल्तजा है कि तुम सो हर रात फूलों के गलीचे पर बड़े एहतियात और मुलायमियत से। तुम्हारे कोमल पीठ फूलों की नर्म पंखुड़ियां सहलाए रात भर, जैसे जनवरी की एक रात मैंने अपनी उंगलियों के पोरों से सहलाया था तुम्हारा पीठ। पेंटिंग अंतःकरण में उपजी भावनाओं का विनोद है। आपने गुलदान देखा होगा, मर्तबान देखा होगा, खिड़कियां देखी होंगी, सूखे पत्ते देखे होंगे। फिर आप इन्हें पेंटिंग में देखते हैं तो पाते हैं ये एक दूसरी रोशनी है। हम सभी ने लाल, पीला, हरा, नीला सभी रंग देखा होगा, लेकिन जब हम अपनी ही पेंटिंग देखते हैं तो पाते हैं कि ये एक भिन्न रूपाकार है। एक परिप्रेक्ष्य में किसी वस्तु की नई दृष्टि में आलोकन ही एक कला का प्राण है। मैं अपनी पेंटिंग में विषय वस्तु को एक दूसरी ही अति पर ले जाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए भिन्न भिन्न आयाम सोचता हूँ, ताकि आप मेरी कला को मैजिकल रियलिस्ट कह सकें। बुद्धि की मानसिक और मानसिक संतुष्टि के लिए मुझे एक कुशल चित्रकार मानकर अपनी कला का नकल करें, उसका उपहास न करें और दावे के साथ कहें कि विजेंद्र जी, आपकी जैसी सजल कलर पैलेट कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी भी दृष्टि को दत्तचित्त होकर कैनवास पर उतारने की मेरी जिद रहती है। मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला चटक गुलाबी रंग वर्मिलियन दर्शकों और कला प्रेमियों को गहरे अर्थ में सिड्यूस करे ना करे, लेकिन मुझे तो करता है, क्योंकि चटक गुलाबी रंग ही मेरी आत्मा का रंग है। मेरी पेंटिंग को देखते हुए कभी कभी मेरा जी करता है कि कैनवास को दांतों से जरा सा कुतर दूं। ना जाने मेरी ही पेंटिंग मुझे इतनी लुभाती क्यों है। मेरी सदैव कोशिश रही है कि मैं अपने चित्रों में रंगों का सौंदर्य शास्त्र रचूं, उनमें ड्रामेटिक लाइट्स का संवाग रचूं, मृदुल संदर्भ रचूं। अगर घास को भी हरे रंग से रंगूं तो वह भी औरों से भिन्न हो।
सबसे सुरम्य, सबसे कल्पनाशील और सबसे बिलक भाव मन में जगाने वाला हो। और मेरी कृतियां फैंसी के कलिशे से भरी होने के बावजूद अपने चित्रांकन से सजीव हो उठे, और फिर मैं उन्हें देखकर कल्कि वाले मोर की तरह इतराऊं और गौरव करूं कि इसे मैंने रचा है, और उसके प्यार में इस तरह गिरफ्तार हो जाऊं कि चित्र न उकेरूं तो कहीं जी न लगे। तुम प्रकृति से पानी हो, निरंतर अपना रास्ता तलाशती हुई, हर क्षण, हर आकार, हर स्थिति में ढलती हुई, अपना अस्तित्व न खोकर भी मेरी शक्ल अख्तियार करने में पूरी तरह सामर्थ्य सक्षम तुम मेरे जीवन का उत्स हो, जिसे सींचकर हरा करती हो। तुम्हारे चेहरे पर ठहरे हुए उदासी को नीरवता के पीछे जितनी गहरी बारिश है, आषाढ़ का मेघिल आकाश है, सांवले मटमैले दिनों की अछोर कतार है, उतना ही मैं हूं तुम में। ये दुनिया बहुत बड़ी है और बेहद विचित्र है, इसलिए नहीं कि यहाँ खूब सारे नदी, पहाड़, जंगल हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ दो के बीच अंतरिक्ष जैसी असंभव दूरियां होती हैं, और मन का घर तो इतना दूरगामी कि आप पास होकर, साथ रहकर भी इस घर तक का आपका पहुंच पाना जैसे असंख्य पर्वत लांघना। तुम्हारे चेहरे पर ठहरे हुए उदासी और नीरवता के पीछे जितनी गहरी बारिश है, आषाढ़ का मेघिल आकाश है, सांवले मटमैले दिनों की अछूर कतार है, उतना ही मैं हूं तुम में। तुम्हारी आंखों की तरल छावनी में करुणा का गीला विस्तार, ठीक जैसे सांझ की बहती हुई गहरी नीली उदासी में किसी नदी की निःशब्द धार। मेरी चाहना वो नदी है जो तुम्हारे पहाड़ से विराट और अडिग विश्वास का नित्य अभिषेक कर पांव पखारती है, जैसे समुद्र की लहरें किनारे खड़ी नाव का। मेरा मन तुम्हारे ख्यालों के समुंदर के सीने पर चट्टान सा पड़ा रहता है, जिसमें तुम्हारी यादों का प्रतिबिंब टूटता बिखरता सांसों की लहरों पर कांपता है। एक नीरे मायूसी बिंब के भीतर दैवत्व का रूपक कैसे संभव हो पाता है, मैं समझ नहीं सकता। लड़कियां निष्कलुष की निर्भार दीपशिखा की तरह होती है, उतनी ही वेद्य और निष्कवच, उतनी ही आकर्षक, हमारे शलभ को अपनी ओर खींचती हुई। स्त्री का संसार संभावनाओं का संसार है, वह प्रेम और चाहना के ऐसे आयाम का संसार भी है जिसमें पुरुष पूरी तरह अनभिज्ञ है, जैसे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी जो उसकी भाषा नहीं समझ सकते। स्त्री प्रेम की प्रतिभूति है और प्रेम को जानना है, जो हृदय भी स्त्री सा वांछित है। पीड़ा के दिनों में भी खुलकर मुस्कुराना जरूरी होता है। जीवन चाहे जितना दुखद हो, मुस्कुराहट सदैव सुखद होनी चाहिए। जीवन चाहे जितना अधूरा हो, हंसी पूर्ण होनी चाहिए। उजली भोर की तरह हृदय को शुष्क बनाकर भी क्या जीना। जिसके पास पूरी हंसी नहीं, वो आधी जलकर बुझी चिता की तरह ही तो होते हैं।
भाषा इतनी सक्षम नहीं कि किसी की भावनाओं को एक उज्जवल छटा के साथ व्यक्त कर सके, लेकिन एक छवि चित्र छिपे मनोभावों को हाव भाव में शोखी को उजला कर सकती हैं। हमारी तवज्जो की रोशनी के आगे भी आप एक लंबी, सुखद और समृद्ध जीवन जिए, यही कामना। एक मुस्कुराहट, किसी की मुस्कुराहट किसी के लिए उत्सव बन जाती है। जीवन में जितने आश्चर्य भरे हैं वे सब एक स्त्री में उजागर होते हैं। किसी की मुस्कुराहट चित्त में शीत ऋतु की धूप सरीखी उजलापन भर देती है जो अनश्वर है। पारलौकिक का भाव मन में चला आता है, स्मृति रंगशाला बन जाती है। आपके मुखमंडल पर निश्चल मुस्कुराहटों का गुलदस्ता यूं ही सदैव सजा रहे, यही मेरा मनोरथ, यही मेरी चाहना।